While the entire war of words continues within the Aam Aadmi Party between what seem like two factions, now there is one man who is watching from the sidelines, almost saying, "I told you so." It is the man who provided the launch pad to many of the leading lights of the Aam Aadmi Party, Anna Hazare. Remember, it was his India Against Corruption movement that had provided the launch pad to Arvind Kejriwal and several of his lieutenants. Thank you very much, Anna ji, कि आप हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। पर इससे पहले कि हम आपके पास आए, एक बार इसको अवगत करा देते हैं कि हुआ क्या, because this all out war between the Aam Aadmi Party, if you thought that it had peaked yesterday, it went to another level altogether today, with Kapil Mishra making damning bribery allegations, even more of them against Arvind Kejriwal, and today he took that alleged proof to the Anti-Corruption Bureau. However, the Aam Aadmi Party is adamant there will be no action against the Delhi Chief Minister. In fact, they also say that Kapil Mishra is only singing the tune of the BJP. कपिल मिश्रा के माध्यम से जो खेल चल रहा है, वो खेल आम आदमी पार्टी की सरकार का उत्पीड़न करने का चल रहा है। Over 24 hours after the most damning bribery charges comes the Aam Aadmi Party's big counter. When the bribery exploded on Sunday, all that the Aam Aadmi Party could do was stay in denial. ये बात मैंने बताई थी कल उनको, और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। But now, in an attempt to save their sinking ship, the Aam Aadmi Party apex team has called sacked Mantri Kapil Mishra BJP's Trojan horse. कपिल मिश्रा के माध्यम से जो खेल चल रहा है, वो खेल आम आदमी पार्टी की सरकार का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल कहीं ना कहीं एक बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा है। इसलिए कि लगातार कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं, और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। A day after making the 2 crore rupee bribery allegations on Kejriwal, Kapil Mishra met the Anti-Corruption Bureau, presenting proof of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the water tanker scam. बीजेपी का एजेंट हूं, मोदी का एजेंट हूं, और बीजेपी और मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा हूं। मैं एक बात पूरे देश के कार्यकर्ता जानते हैं, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। But surprising, the letter that he submitted did not have any mention of the 2 crore bribe that Kejriwal allegedly accepted from Satyendra Jain. एसीबी भारी दबाव में है। एसीबी अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है। एसीबी अरविंद केजरीवाल का नाम बार बार उनसे उगलवाना चाहती है, उनका नाम डलवाना चाहती है। But the man of the hour, Arvind Kejriwal, is still silent. आज केजरीवाल की और उनके लोगों की पोल कपिल मिश्रा खोल रहे हैं, कल हो सकता है केजरीवाल कपिल मिश्रा की कोई पोल खोले, तो ये तो सरकार में ठीक नहीं चल रहा। असली बात तो ये है, इन तीनों का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। कपिल मिश्रा भी करें, केजरीवाल भी करें और सत्येंद्र जैन भी करें, ताकि सच की सच लोगों के सामने आए। ये पहले लगता था मुझे, जब मेरे साथ में था उस टाइम पर मुझे लगता था कि अरविंद ऐसा भ्रष्टाचार वगैरह नहीं कर सकेगा, लेकिन आधे मंत्री उनके मंत्रिमंडल से चले गए, तब से मेरा विश्वास उठ गया कि वो जो अरविंद था पहले, आज वो अरविंद मुझे दिखाई नहीं देता। The man who propelled himself into national prominence, riding on the promise of corruption-free politics, today stands in the dock for doing exactly the opposite of what he pledged.
and his silence only prompting one question. Was Kejriwal wearing an Aam Aadmi mask all this while? With Ankit Tyagi, Ilma Hassan and Ashutosh in Delhi, Bureau Report, India Today. Let me go straight to Anna Hazare now. Anna ji, जो आदमी एंटी करप्शन के मंच से नेता बना, उस पर अब 2 करोड़ लेने का इल्जाम लगा है. ये फर्क कैसे आ गया इतने ही सालों में? नहीं, अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपया लेने का जो आरोप हो रहा है, इससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जान की बाजी लगाकर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ते रहे और जान की बाजी लगाकर लड़ते हुए आज उसी अरविंद पर आरोप हो रहा है, तो ये मुझे बड़े दुख की बात हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है. लेकिन दूसरी बात ये है कि जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने आरोप किए. कल तक ये मुख्यमंत्री थे, ये मंत्री थे, कल तक तो इकट्ठा आ गए और मंत्री होते हुए भी उनको दिखाई दिया था कि ये भ्रष्टाचार 2 करोड़ रुपया लिए हैं. उसी टाइम पर ये जनता के सामने आना जरूर. हाँ, नहीं, ऐसा है कि आरोप जो हो रहे हैं, तो आरोप अगर हो रहे हैं तो हमने कहना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर आरोप हो रहा है तो मेरी जांच करो. मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं 40 साल से जो लड़ रहा हूं, मेरे ऊपर तो ऐसे कई बार आरोप हुए, तो मैंने ये स्पष्ट कहा कि मेरी जांच करो. एक बार जब हमारे ऊपर आरोप हुए और मैं अनशन शुरू किया, जब तक मेरी जांच नहीं होगी तब तक मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा. कर नहीं तो डर किस लिए? अन्ना जी, आपको लगता है कि जब तक ये जांच पूरी ना हो, क्योंकि अब एंटी करप्शन ब्यूरो तो जांच करेगा, कपिल मिश्रा ने उनको कथित तौर पर सबूत भी दिए हैं, जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक अरविंद केजरीवाल को अपने पद से हट जाना चाहिए? नहीं, वो हट जाना नहीं चाहना मैं नहीं कह सकता. कोई किसी ने कुछ भी कहा और उन्होंने सोचा कि मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, चाहे जो कुछ करो. हाँ, तो दूसरा आदमी क्या कर सकता है इसमें? कुछ नहीं कर सकता. हाँ, जांच की रिपोर्ट होने से वो बोल सकते हैं कि अभी इस्तीफा देना चाहिए. आपको लगता है जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती तब तक अरविंद केजरीवाल को अपने पद पर बने रहना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है? क्योंकि बार बार मैं आपसे सवाल इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार पद में रहा, लोगों पर आरोप लगाए हैं, कहा है कि ये हमारे पास सबूत है, आप पद से हट जाओ, आप साइड हो जाओ, आपको अब कोई हक नहीं है अपने पद में बने रहने का. इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं. तो वही पैमाना उन पर भी लगना चाहिए ना? नहीं, वो उन्होंने सोचना है, क्योंकि उन्होंने जिस दिन पार्टी निकाला उस दिन से तो मेरा उनका कोई संबंध रहा नहीं. वो मुख्यमंत्री बने तब से मैं एक दिन भी कभी उनको फोन नहीं किया, मुझे उनको मिलने की भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उनसे बहुत दूर रहा. तो ये उनका सवाल है. अभी कई लोग बोल रहे इस्तीफा देना चाहिए, वो बोलते नहीं देना, नहीं देंगे, पार्टी बोलते नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे? क्या ये अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल है जिसको आप जानते थे, जिसके साथ आपने एक मंच पर बैठे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी? जो आज अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए, चाहे 1000 मेरे ऊपर इल्जाम लग जाए. जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी निकाली और मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 मंत्री से 3 मंत्री इस्तीफा देना पड़ा, तब से मेरे सामने वो अरविंद नहीं रहा जिस अरविंद को मैं देख रहा था.
वो अरविंद अभी मेरे सामने नहीं रहा। जब आरोप होने लगे लोगों के, ये स्थिति में हम लोग चले गए तो अभी मेरे सामने वो अरविंद नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता है। तो ये बदलाव की वजह क्या हुई? क्या ये सत्ता की वजह से, जो आसपास की संगति है उसकी वजह से? एक आदमी में इतने ही सालों में इतना बदलाव कैसे आ गया? ये एक अरविंद ने देश में हम चित्र देख रहे हैं ना, चेयर में बैठ जाता, कुर्सी में बैठ जाता और उसके बुद्धि का पालट हो जाता। ऐसे चित्र है इस देश में। मैं तो अभी बताता हूं, ऐसे आरोप हो गए, इंक्वायरी हो गए। पहले मंत्री अगर दोषी पाया गया कि ये करप्शन किया है, ऐसा पाया गया इंक्वायरी में, तो निर्भया कांड में 4 लोगों को फांसी चढ़ाए ना, ऐसे पहले मंत्रियों को फांसी चढ़ाना चाहिए, तब यह देश आगे बढ़ेगा। ये क्या 1-2 लोग नहीं रहे हैं? आज ये कैसे बर्ताव करते हम देखते हैं। ये चेयर का क्या गुणधर्म है पता नहीं। ये कुर्सी में बैठ गया तो बुद्धि का पालट हो जाता है, समाज, देश, ये सब दृष्टि से दूर चला जाता है, सत्ता, पैसा सर में, दिमाग में घुस जाता है। आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी अन्ना जी कि आज अगर अरविंद केजरीवाल आपको सुन रहे हैं, उनके कोई करीबी आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक गुरु के तौर पे आप कह रहे हैं कि अब उनसे आपका संपर्क नहीं है, पर अगर वो आपको आज सुन रहे हैं, क्योंकि इस बार उनके ऊपर लगा है इल्जाम। क्या है, मैं कुछ भी कहा तो वो सुनने के परे चले गए सब। जब से मेरा उनका रास्ता अलग अलग हो गया, वो पक्ष और पार्टी निकाला, मैं अपना वही रास्ता चालू रखा, आंदोलन। तब से हमारा रास्ता अलग हो गया। अभी मैं उनको बताने से क्या फर्क पड़ेगा? वो बोलते बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं उनसे कुछ कहना ठीक नहीं है। पर क्या ये भी मुमकिन है कि उनके खिलाफ, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बोल रही है कि षड्यंत्र हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर उनके खिलाफ सब लोगों को खड़ा किया जा रहा है, क्या ये हो सकता है? पक्ष और पार्टी में कुछ कह नहीं सकते हैं। सत्ता और पैसा इतने दिमाग में बैठी है पक्ष और पार्टी के लोगों के दिमाग में। कई लोग स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, ऐसे लगता है। इतने चिपक गए चेयर से, इसके कारण यह देश की हालत बन गई। अन्ना हजारे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की यहाँ इंडिया टुडे पे। दिस इज एन ओपन पॉलिटिकल फाइट, ईच साइड vying for power. However, so far Anna Hazare is still giving that sliver of a benefit of doubt to his old disciple Arvind Kejriwal, questioning the timing of these allegations by Kapil Mishra, also talking about how power seems to have changed the man he knew earlier. Arvind Kejriwal is not the same anymore.